आप सभी? थोड़ा स्माइल रखो फेस पर। कैसे आप सभी? मनीषा, गुड मॉर्निंग। So students, I welcome you all in our English grammar class. And beta, yesterday we have done some rules related to numbers. I hope you have learned properly. कर ली पूरे सभी ने लर्न कर लिए? I hope you have learned all the rules. कर लिए ना बेटा आपने सारे rules? Good. So today we will proceed to next rule. So today is 4th September, right? And open your notebook, keep your pencil in your hand, and let's write. How many rules we have done, beta? Number 8. So today we are going to read rule number 8. Rule number 8 पढ़ेंगे आज हम बेटा. And this rule is saying that the plural forms of some nouns differ from the singular forms. बेटा ये कुछ ऐसे nouns हैं जिनकी plural बिल्कुल different है. ठीक है, इनका कोई रूल नहीं है, बस आपको याद कर लेने हैं ये, है ना? So let's write. Tomorrow is Teachers' Day. So what are you doing? Have you prepared something for Teachers' Day? Manisha? Rule number 8, beta. The rule is saying that the plural forms of some nouns differ from the singular forms. Singular forms. Okay, it means बेटा जो प्लूरल फॉर्म होती है किसी भी नाउन की इस रूल के अकॉर्डिंग वो एकदम डिफर होती है, बिल्कुल अलग होती है. ठीक है, so let's take an example related to this rule. Actually this is not rule. These are some nouns we have to learn as it is. जैसे है उनको वैसे ही हमें याद करना है. तो देखते हैं बेटा. So first word, firstly we will write singular and then plural.
What is brother? And its plural will be brethren. Okay. BROTHEREN. Okay. Or you can say brothers. Is and are for what? These are the both are right. Okay, beta. Both are right. Brethren right and brothers also right. So you can learn this plural or this plural. Okay. Let's take the next one. Foot. Foot. And its plural will be feet. Feet. Okay. Foot का plural होगा feet. Next is goose. Goose. Okay. And its plural will be geese. As this हमको बस ये याद कर लेना है. Goose का plural होगा geese. ठीक है. Next louse. ठीक है. और इसका plural होगा बेटा lice. Next is man. और man का हो जाएगा it also called man but spelling is different. MAN man is singular, MEN man is plural. Okay. Next is mouse. Mouse and its plural will be mice. Okay. So we have a primary verb for the verb to do, to be, to do, to have, is, am, are, was, were, do, does, did, and have. These are the 11 primary. Next is ox and its plural will be oxen. Tooth. Tooth is singular and its plural will be teeth. ठीक है. Next is woman. Okay. And its plural will be women. इसे हम women बोलेंगे और इस plural को हम women बोलेंगे. Okay. Now last is child. And child's plural will be children. Okay. Now you can write. ये man है MAN man, MEN man. हो गया. और ये वाला है child 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 CHILDREN children. Child की स्पेलिंग मेरी दिख रही है. Okay, I'm writing here बेटा. CHILD child CHILDREN children. Okay. Now is it okay? Have you written beta? So in that chapter we will study about model and we have studied about the primary auxiliary period. Do fast, then we will repeat all these singular plurals. Shall we start beta? चलिए शुरू करते हैं. First word is brother. Speak after me. सब बोलेंगे मेरे साथ में. Brother. Brother का क्या होगा? Brothers. और
brethren, whatever you want to say. Okay, next is foot. foot का क्या होगा? feet. goose, goose का geese. louse, lice. man, man. mouse, mice. ox, oxen. tooth, teeth. woman, women. Okay, child, children. So you have to learn all these nouns beta. Shall we move further? Okay. Last but not the least, rule number 9. Okay. Now we will learn some compound nouns. Plural, form of compound nouns. Compound nouns are given. Given here. Okay. बुक में बेटा आपको नहीं बता रखा है कि हमें कैसे करना है, बट आई हेल्प यू. ओके, आई हेल्प यू. हो गया ना ये सबका? सबका हो गया ना? चलिए, so let's take in this first example, son-in-law. Okay, son-in-law. ठीक है, ये कंपाउंड नाउन्स है. ठीक है, एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं. हाँ बेटा, मंडे को स्कूल खुल रही है. ठीक है, मंडे को सभी बच्चों को स्कूल आना है. टाइमिंग विल बी 8:30. ओके, यू हैव टू रीच द स्कूल एट 8:30. ओके, चलिए अब यहाँ आते हैं पॉइंट पर. सन इन लॉ का हमें बनाना है प्लूरल. तो इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? Here we write plural. Okay, sons-in-law. Sons-in-law. ठीक है, son-in-law का हो जाएगा sons-in-law. ठीक है, LAW. ठीक है, son-in-law का क्या हो जाएगा? sons-in-law. ओके, नेक्स्ट देखिए आप, स्टेप मदर. स्टेप मदर. अब स्टेप मदर का क्या होगा बेटा? क्या होगा? मदर के आगे एस लग जाएगा सिंपली. ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप मदर्स. स्टेप मदर्स.
नेक्स्ट स्टेप सन, ठीक है। स्टेप सन का क्या हो जाएगा बेटा? स्टेप सन्स। स्टेप सन्स, ठीक है। स्टेप मदर क्या होती है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस स्टेप मदर क्या होती है? सौतेली माँ, ठीक है, जो रियल मदर नहीं होती है, स्टेप मदर्स, ठीक है। स्टेप सन क्या होता है? सौतेला बेटा, ठीक है, जो रियल सन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप सन, ओके। बेटा बस टाइम विल बी सेम एज पर द अर्लियर शेड्यूल, ठीक है। जो बस आपकी फर्स्ट टाइम पे आया करती थी ना स्कूल बंद होने से पहले, उसी टाइम पर बस आएगी। क्लियर? सो बी रेडी। नेक्स्ट इज वॉशरमैन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वॉशरमैन एंड its plural will be washer MEN हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। वॉशरमैन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? देखिए, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? जहां भी आपको मैन दिखता है आप उसकी स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, नथिंग एल्स। मैन सर्वेंट, ओके। क्या हो गया? MEN था यहाँ पर हो गया MEN। आगे चले बेटा। नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब इसका हो जाएगा प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। Brothers in law, okay. Now next is father-in-law, इसका हो जाएगा फादर्स इन लॉ, ओके। ये आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। द इजीएस्ट वे टू लर्न ऑल दीज सिंगुलर प्लूरल बेटा। नेक्स्ट इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। इसका हो जाएगा प्लूरल मदर्स इन लॉ, ठीक है।
and last is maid servant. Man servant, ठीक है, इसका हो जाएगा प्लूरल मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। क्लियर? राइट इट डाउन फास्ट बेटा। देखिए अब मैं आपको इनके मतलब बता देती हूँ, एक बार कैसे करना है ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है सन इन लॉ। फर्स्टली जो भी रिश्ता है, जैसे सन है, मदर है, और यहाँ पर सर्वेंट है, ठीक है, या मदर है या फादर है, ब्रदर है, ऐसे रिश्ते जो भी आते हैं उनके आगे बेटा आप एस लगा दीजिए। तो कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने का बस ये एक ही फॉर्मूला है। क्लियर? समझ में आया? चलिए देखते हैं। सन इन लॉ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सन के आगे हमने एस लगा दिया, दैट विल बी सन इन लॉ। क्लियर? ठीक है, ये होता है दामाद या जवाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेप मदर। स्टेप मदर में हमें क्या किया, मदर में एस लगा दिया, स्टेप मदर्स हो गया, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू विल लर्न, ओके। नेक्स्ट इज स्टेप सन, तो ये हो गया स्टेप सन, हमने सन के आगे एस लगा दिया, स्टेप सन। यहाँ आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है। आपको एस कहाँ लगाना है, इसका प्लूरल बनाना है, इसका नहीं बनाना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट देखिए वॉशरमैन। मैन का कैसे प्लूरल बनता है, स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है, यू नो वेरी वेल, वॉशरमैन हो जाएगा, ठीक है। हियर स्पेलिंग विल बी चेंज। नाउ मैन सर्वेंट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, मैन सर्वेंट, ओके। नेक्स्ट इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हमने एस लगा दिया, ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर? इज इट क्लियर? छवि। नेक्स्ट इज फादर इन लॉ, ठीक है, तो हमने क्या किया, फादर क्या किया, एस लगा दिया, फादर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, एस कहाँ लगाया हमने, मदर में लगाया, फादर में एस लगाया, मदर में लगाया। नेक्स्ट मेड सर्वेंट, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। सो इन दिस वे यू कैन मेक एनी कंपाउंड नाउन प्लूरल, ठीक है। अच्छा, इनके मतलब मैंने बता दिया आपको। स्टेप मदर इज, ये होता है सौतेली माँ, सौतेला बेटा, और ब्रदर इन लॉ होता है देवर, ठीक है। फादर इन लॉ होते हैं ससुर जी, मदर इन लॉ होती है सासू माँ, और मेड सर्वेंट यू नो, जो लेडी नौकरानी होती है, नौकरानी हम कह सकते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ की मैंने अभी बताई बेटा आपको, देवर, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? खुशी यादव, I hope now you understand very well. So at last write your homework now. Learn and write CW. And what we have done in our class, in this class, rule number 8 and rule number 9 we have done. So you have to do rule number 8 and 9. So this is your homework for today. Clear? And you have to learn all these very well. So that's all for today. We will meet on Monday. Thank you. Have a good day. Bye beta.